Okay, let's start. So we were discussing about the preparation of alkenes. Already I had explained this Wittig reaction as well as the Kolbe reaction. So preparation of alkenes already have completed. Now chemical reaction. I am going to explain this chemical reaction. Chemical reaction. What is the chemical reactions of alkenes? So normally because of the pi bond, it gives the addition reaction, right? So we were discussing about this following reactions of these alkenes. First, addition reactions. Addition reactions. Second, oxidation. Third, ozonolysis. Fourth, then I'm writing this fourth one, uh, isomerization. Fifth one, substitution. At alpha carbon. ये मैंने मैकेनिज्म में सारे रिएक्शंस मैंने बताए, सारे रिएक्शंस। हाँ, इसको हम लोग लिखेंगे alkenes other than ethene. तभी तो अल्फा कार्बन आएगा इथीन को छोड़ करके. एंड सिक्स्थ वन इज व्हाट? पॉलीमराइजेशन. Polymerization, because of this double bond, it's for the polymerization reaction also. So these are some important reaction which is given by this alkene. So addition reaction, oxidation, ozonolysis, isomerization, substitution, and polymerization. So one by one we will discuss about this different chemical properties of alkenes. So first I'm going to explain this addition reaction. First, okay. So in addition, first we consider addition of HX. In this HX, it can be HCl, HBr, and HI. ध्यान से देखना यहाँ पे. So here is the two types of alkene, symmetrical and unsymmetrical. So we know that alkenes give, that is the important part, very most important part, alkenes give इलेक्ट्रोफिलिक. हाँ, मैंने एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपको बताया था. एडिशन रिएक्शन में थ्री टाइप्स ऑफ द एडिशन रिएक्शन: इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एंड फ्री रेडिकल. So this is the one kind of the electrophilic addition reaction. इसमें देखो ऐड होने को तो दोनों ऐड होगा, H और Cl दोनों ऐड होगा,
but H is what? As a electrophile, Cl is what? As a nucleophile. So addition of electrophile is slow and addition of nucleophile is fast. That's what is called what? Electrophilic addition. जिसका एडिशन स्लो होगा उसके नाम से हम उसको कंसीडर करते हैं. यहीं पे अगर अल्कीन की जगह हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होगा, अल्डिहाइड और कीटोन, देन न्यूक्लियोफाइल विल फर्स्ट ऐड स्लो एंड इलेक्ट्रोफाइल ऐड फास्ट, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. बट हियर addition of electrophile is slow and the nucleophile is fast. That's what is considered as what? Electrophilic addition. So now in this case, we consider so alkene give the electrophilic addition reaction. कैसे देता है electrophilic addition reaction with HX? So alkenes give electrophilic addition reaction with HX and product formation takes place. Product formation takes place according to Markovnikov rule. अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत अच्छे से मैकेनिज्म बताया आपको अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule. Right. So suppose if I'm taking here example RCH double bond CH2 and here going to add this HX. You tell me what product will form here. Tell me fast. Very simple concept. All of you know that. This is the partial negative. Here is the partially positive and negative part will attach to that carbon which carries the less number of hydrogen. That is the Markovnikov rule. Is it right? So what product will get here? RCH and here will get what? CH3 and here is what? X. It means what? H will attach here and X will attach here. Markovnikov product. Are you getting my point? Yes. Say something. Yes, sir. Yes. So now tell me what product will get here. What are the name of product? Come on, do it fast. Find out the product fast. आपको मैकेनिज्म इसका पता है अच्छे से. मैकेनिज्म मैंने बताया कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद यहाँ पे दो चांसेस होते हैं. कैसे? देखो यहाँ पे सपोज इस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ अगर आपको, तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा. वी कैन राइट इन दिस वे. देखिए जरा सा यहाँ पे वी कैन राइट इन दिस वे HI. इट विल डिसोसिएट एज इट इज एंड हियर इट फॉर्म दिस प्रोडक्ट. तो क्या मिलने वाला है अपने पास? दो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 CH3. अब सपोज H यहाँ पे अटैच हो गया और ये CH2 बन गया कार्बोकैटायन. बट सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे अटैच हो गया H और यहाँ पे फॉर्म हो गया कार्बोकैटायन. So this is primary carbocation, this is tertiary carbocation will be what? More stable. And because of this more stable carbocation, here is the nucleophile will attack. तो जो सेकंड स्टेप होगा I माइनस का वो अटैक यहाँ पे करेगा और मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? We get this product CH3
CH3 CH3I. Is it right? This is the Markovnikov rule. And whenever you are going to find out this mechanism, so जिस भी रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, तो आपको रीअरेंजमेंट के भी चांसेस देखने हैं। यहाँ पे रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। इस केस में देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा, जरा चेक करते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। डेफिनेटली वन बाय वन स्टेप वाइज जाओ आप। पहला ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको बना के आप देख लो। यहाँ पे हो गया CH3। अब अगर H यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे प्लस बनेगा, और दूसरा चांस क्या हो गया अपने पास कि ये CH3 है और H यहाँ पे अटैच हो गया, देन प्लस विल बी क्रिएट हियर। So again you are observing here this is tertiary and this is what secondary, so this will be more stable. तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये मेजर प्रोडक्ट। एज अ मेजर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला अपने को, ये Br। राइट है? सबको आ रहा है क्या समझ में? यस, नोट डाउन दिस पार्ट। नोट डाउन करिए और एक मुझे प्रोडक्ट बना के बताओ मुझे क्या बनने वाला है यहाँ पे प्रोडक्ट। दिस इज द क्वेश्चन। इफ आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, ये मैंने आपको कराया भी है रिएक्शन, आपको याद होगा तो, CH3 and CH3। Here is what CH डबल। इसका रिएक्शन करा रहा हूं मैं HBr से। आप बताइए प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। ऑल ऑफ यू सेंड मी द मेजर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है यहाँ पे। ऑल ऑफ यू सेंड मी द प्रोडक्ट, ऑल ऑफ यू सेंड मी द प्रोडक्ट। ऑल ऑफ यू, अब्दुल, अनुज, दयानिश, प्रतीक्षा, लेवरिन एंड दीप कहाँ गया? अरे था ना दीप, अभी छोड़ दिया। चलो ऑल ऑफ यू फाइंड आउट बेटा। टेल मी द प्रोडक्ट फास्ट। सेंड मी योर प्रोडक्ट फास्ट। ओके, चलिए चेक करते हैं। और कोई? ऑल ऑफ यू सेंड मी फास्ट।
चलिए बताइए, मैंने बताया ये सब रिएक्शन बहुत अच्छे से बताया, अगर ये नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। चलो बताओ जल्दी से क्या आने वाला है बेटा यहाँ पे। अरे 4 से 6 कैसे हो गए, 6 से 4 हो गए, बाकी गए किधर सब। नेटवर्क इशू है क्या। दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे बेटा करना क्या है अपने को, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द मैकेनिज्म। तो इन मैकेनिज्म स्टेप 1 में क्या होगा, ये इसको अप्रोच करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अपने पास, बहुत ध्यान से देखो, मैं ये इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या बनने वाला है यहाँ पे। तो व्हाट विल गेट हियर, CH3 ओके। एक सेकेंड, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, करें नहीं कर रहे। ओके बेटा देखो यहाँ पे कैसा होगा, पहला CH3 CH अब CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो H कहाँ पे आएगा वो जरा डिसाइड करना है, यहाँ पे या यहाँ पे। चलो यहाँ पे अगर आ गया H, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और H यहाँ पे आएगा तो प्लस। तो पहले ये सेकेंडरी है और ये कैसा होगा, प्राइमरी, तो दैट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, यस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, यही आपको ध्यान में रखना है। रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे। In rearrangement, this methyl will shift here and form this tertiary carbocation that will be more stable. Whenever you are observing that because of the 1,2 hydrogen shifting, 1,2 methyl shifting, या 1,2 phenyl shifting, they are converted to the more stable tertiary carbocation, then rearrangement will be possible. And in that case, rearrangement will take place there. So in this case, we get this CH3. अब देखो ये CH3 बेटा यहाँ पे आ चुका है, हाँ ये CH3 यहाँ पे आ गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम व्हाट, प्लस चार्ज यहाँ पे, ठीक है। और ये CH3 एज इट इज है, तो यू आर ऑब्जर्विंग हियर नाउ इट बिकम व्हाट, टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, कार्बोकैटायन दैट विल बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो डेफिनेटली अब न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, आई माइनस या Br माइनस जो भी था यहाँ पे वो अटैक करेगा, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने पास, ये CH3CH CH3Br, yes. So now it become what, 2 bromo 2 bromo 1 2 3 4 2 3 dimethyl butane, 2 3 dimethyl butane, got it, got it। तो इन दिस केस स्टेप वाइज आप जाओगे, जहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस है ना, तो वहां पे आपको रीअरेंजमेंट देखना ही पड़ेगा, देन यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। चलिए एक और रिएक्शन आपको बताना पड़ेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं यहाँ पे बार बार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको आने चाहिए। प्लीज जरा इसको कंसीडर करो और अच्छे से सिंसियरली लिखो इसके प्रोडक्ट, हाँ। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार एक का रिएक्शन अगर आपने सीख लिया, एक का एडिशन HX का, तो आपको वाटर का एडिशन और बाकी दूसरे एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे बताओ
ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ बेटा, यहाँ पे नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे सी, हियर वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट reaction, addition reaction of the alkene, that is what addition reaction. In addition reaction, first we are discussing here the addition of HX, hydrogen halide. So addition of HX always takes place because of the Markovnikov rule, means negative part attached to that carbon which carries the less number of hydrogen. Because of the mechanism, when we are going to form this mechanism, then we get first of all H plus ion will attach there and form the carbocation, and carbocation will go for the rearrangement. जहां पे भी carbocation बनेगा वो rearrangement के अगर चांसेस है तो वहां पे rearrangement के लिए जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बना तो यहाँ पे H के अटैच के दो चांसेस है, यहाँ पे और यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे प्लस आ गया, दैट इज द टर्शियरी मोर स्टेबल, और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन व्हाट आई एम गिविंग हियर, सो व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद द HBr, तो नॉर्मल वे में आप कहोगे कि चलो ठीक है सर, आपने बताया मार्कोनिकॉफ रूल, Br मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, H यहाँ पे अटैच कर दिया और प्रोडक्ट बन गया, जैसा लिख के दिया किसी ने कि 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बट दैट इज रॉन्ग। Reason behind that, first we go for the mechanism. In step one, it will be get, alkene will get what, protonated, and because of this protonation H will attach here and give the secondary carbocation. देखो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन के चांसेस है अगर H यहाँ पे अटैच हो गया, बट दैट विल बी नॉट स्टेबल। प्राइमरी है सेकेंडरी है तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल गया, बट क्या हमें देखना है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में भी रीअरेंजमेंट के चांसेस है क्या? अगर रीअरेंजमेंट से कोई मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हमें वो बनाना पड़ेगा। तो अब देखो जरा यहाँ पे, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसके जस्ट बगल में एक मिथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया और प्लस यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर एडजेसेंट कार्बन पे कहीं पे हाइड्रोजन, मिथाइल या फिर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है C6H5, तो यहाँ पे इसकी शिफ्टिंग होगी आराम से, और यहाँ पे मिथाइल की शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई CH3 का, और H यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ गया, ये प्लस बन गया। अब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से अब Br यहां पे अटैक करेगा, और दिस प्रोडक्ट विल बी व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Note down this part, huh? Note down all of you this part. And one more question I'm going to give here. All of you try to solve this question very carefully. You will try to solve. और ये मैं शायद 10वीं या 12वीं बार बता रहा हूँ आपको ये चीजें, हाँ? तो जरा ध्यान से देखो और इसके प्रोडक्ट बताओ आराम से, हर एक को आना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो गया, अगर ये भी नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ये देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन करा देना है HBl से। आप बताओ, सोच के बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑल ऑफ यू टेक योर ओन टाइम एंड डू दिस रिएक्शन प्रॉपरली। गो विद द मैकेनिज्म के थ्रू जाओ, आप आराम से गो विद द मैकेनिज्म। ये बार बार सबका डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? नेटवर्क का इश्यू हो रहा है क्या बेटा? Yes. नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मीन्स आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है प्रॉब्लम? चलो सॉल्व करो ये, और प्रोडक्ट बताओ क्या मिलने वाला है अपने। ओके, अपने आप डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है अपने पास।
Tell me fast. What product will get here? तो यहाँ का प्रोडक्ट बताइए मुझे क्या मिलने वाला है. Tell me the name. Otherwise, I'm allowed to use. You can also use the screen and make the product. Okay. So say me the name of product. चलिए मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ. आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, फटाफट आप आंसर नहीं दे रहे हो यार, बहुत डिसअपॉइंट हो रहा हूँ मैं. ऐसे कैसे चलेगा? इतना मैंने बताया सर मैकेनिज्म, ये सब तो आपको एकदम मतलब फटाफट आ जाना चाहिए. चलो देखो इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होगा बेटा. यहाँ पे दिस मैकेनिज्म पार्ट अभी इसके बाद कभी भी आएगा तो आपको आना चाहिए. हाँ? ये आपको ये सब चीजें बाहर हो जानी चाहिए एकदम से. देखो पहला सबसे पहले क्या होने वाला है यहाँ पे कि स्टेप 1 में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा. यही तो है आपका प्रोडक्ट. यहाँ पे प्रोटोनेशन होने जा रहा है इसका. ये डबल बॉन्ड इसको अप्रोच करेगा और ये फॉर्म करेगा प्रोडक्ट लाइक दिस वन. सारी कहानी यहाँ से शुरू होगी. ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है. अब H यहाँ पे अटैच हो गया, सपोज H यहाँ पे आके अटैच हो गया. मैंने यहाँ पे H अटैच कर दिया और यहाँ पे प्लस बन गया. यही तो बना. देखो यहाँ पे H नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, दैट्स व्हाई नो नीड टू राइट इट. इसकी नंबरिंग दे देते हैं हम लोग. अगर यहाँ पे इसको नंबर दे दिया, सपोज ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6. तो आपको पता है कि अगर पेंटागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर के जस्ट बाहर कहीं पे प्लस चार्ज है तो वहां पर रिंग का क्या होगा, एक्सपांशन होगा. रिंग एक्सपांशन आपको याद है? Yes, sir. किसी ने सोचा इसके बारे में? नहीं. यही सब प्रॉब्लम. अब देखो यहाँ पे होगा क्या प्रोडक्ट. ये कुछ ऐसा बना, राइट है ना. 1 2 3 4 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे कुछ आएगा ऐसा, ये इसको अटैच हो जाएगा. चलिए मैं इसका यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ. जैसे ये बन जाएगा यहाँ पे, इसको रीअरेंज मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये बनाऊंगा तो भी चलेगा. हाँ? तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ. देखो ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना. हेक्सागोनल बन गया ये. एक कार्बन यहाँ पे आ गया. अब ये जो प्रोडक्ट बना, यहाँ पे प्लस आ गया. दैट इज नंबरिंग ना, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है. यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा.
आ रहा है सबको समझ में? राइट। अब होगा क्या यहाँ पे कि अभी भी चांसेस है यहाँ पे रीअरेंजमेंट के। बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन में बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ। तो अब जरा यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे ये जो प्लस यहाँ पे दैट इज व्हाट सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अभी भी यहाँ पे H है, तो अगर ये H यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो दैट इज द रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे दोनों चांसेस हो गए, पहला हो गया रिंग एक्सपांशन और दूसरा हो गया यहाँ पे क्या, रीअरेंजमेंट। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. Rearrangement. So now what will get here? So after rearrangement we get this product. फाइनली ये प्रोडक्ट मिला हमें, यहां पे प्लस आ गया, दैट विल बी मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन। And definitely it is more stable. So after that, in second step, that nucleophile will attack here. Very simple. Br minus as a nucleophile, और ये कैसा होगा, फास्ट होगा। ये कैसा हो गया, स्लो हो गया, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं, और प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। यही तो हो गया HBr का एडिशन। समझ में आया अच्छे से? तो ये प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना था, राइट है? चलिए Yes, आगे sir. चलते हैं। और ये मैकेनिज्म मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, कई बार बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखने जाते हैं एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रेशन। So now next reaction is what, addition of water. चलिए, addition of water. अभी तक हमने एडिशन ऑफ HX देखा, अब देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर को ही बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। हाँ, ठीक है, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस होगा, राइट ना? नाउ एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस takes place according to Markovnikov rule. राइट, मतलब जो हमने वहां पे डिस्कस किया था वही चीजें यहाँ पे भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम वी हैव टू डिस्कस हियर। तो अब जरा इसके एग्जांपल देखते हैं। पहले की एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, फिर आपको सारे क्वेश्चन में पूछता हूँ, फटाफट बताइएगा। अभी देखिए मैंने रिवाइज करा दिया तो आपको समझ में आएगा, राइट? दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसिडिक। जो वाटर होगा ना, वाटर नॉर्मल कंडीशन में एडिशन होगा ही नहीं जब तक कि एसिड प्रेजेंट नहीं होगा, राइट? So that is called what, acidic hydration. चलिए देखिए कैसे हो रहा है रिएक्शन यहाँ पे, मेनली इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो पहला रिएक्शन मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सा है, RCH CH2 add with water H2O, can write in this way, in presence of H2SO4 एसिड के प्रेजेंटेशन में ही वाटर ऐड होगा, देन व्हाट विल गेट हियर, हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एडिशन तो इसका ही करना है फाइनली,
तो यहाँ पे होगा क्या, ये देखिए पार्शियली पॉजिटिव हो गया और ये कैसा हो गया नेगेटिव। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन विच कैरीज द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट विल गेट हियर, आर सी एच, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे क्या आ गया सी एच टू। दैट इज अवर प्रोडक्ट, दैट इज अवर प्रोडक्ट, राइट है, बोलिए। तो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, अगर मैंने ऐसा कुछ लिया, यू टेल मी द प्रोडक्ट, हाँ। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है अपने को, टेल मी फास्ट। टेल मी फास्ट। क्या मिलेगा प्रोडक्ट बेटा, टेल मी योर प्रोडक्ट। मिला प्रोडक्ट, एनीवन जस्ट टेल मी फास्ट। देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, हियर वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक, देखो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही सेम होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, हाँ टुडे, ये देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ये एच, यहाँ पे प्लस आ गया, ये पहला स्टेप हो गया। तो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस है, हाँ है, दैट इज व्हाट रीअरेंजमेंट। In rearrangement this methyl will shift here, so what product we get here, यहाँ पे प्लस आ गया,
और यहाँ पे प्लस आ गया तब OH यहाँ पे अटैच होगा। तो फाइनली व्हाट विल गेट हियर, दिस प्रोडक्ट। राइट है, सबको समझ में आया क्या ये? दिस इज अवर प्रोडक्ट, गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। दैट इज व्हाट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट वन है एडिशन ऑफ H2SO4। वो सेम वाटर की तरह ही है, उसमें कुछ अलग से नहीं है, कुछ डिफरेंस बहुत ज्यादा। देखते हैं यहाँ पे। H2SO4 का एडिशन कैसे होता है यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। R डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H2SO4 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जो ऐड होगा वो क्या मिलेगा अपने को, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, here we add this conc H2SO4, concentrated H2SO4। so what will get here, ये देखो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। तो यहाँ पे प्लस जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और माइनस वाला यहाँ पे आएगा क्योंकि निगेटिव पार्ट है। मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा। तो वी गेट दिस RCH CH3OSO3H, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। अब अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का फिर से हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, वाटर से। हाइड्रोलाइसिस क्या बनने वाला प्रोडक्ट, RCH CH3OH, दैट इज फ्रॉम द H2SO4 एज इट इज बाहर हो जाएगा। दैट द रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग अगर फाइनली हम लिखने जा रहे हैं रिएक्शन, तो क्या मिलेगा अपने को, सपोज ये ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो पहला हम क्या ले रहे हैं, कॉन्क H2SO4 ले रहे हैं, और दूसरा क्या ले लिया, यहाँ पे वाटर ले लिया। प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, CH3 CH2OH। By using this method we can get the primary alcohol of ethyl alcohol, primary alcohol as a ethyl alcohol, right? बाकी ये मेथड यूज करके कोई दूसरा अल्कोहल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि वहां पे मार्कोनी का रूल अप्लाई हो जाएगा, और मार्कोनी का रूल अगर अप्लाई हो गया तो वहां पे OH प्राइमरी पे नहीं आएगा कभी भी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो सिर्फ इथाइल अल्कोहल एज अ प्राइमरी अल्कोहल फाइंड आउट हो सकता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। बट सपोज हमें मिथाइल अल्कोहल की जगह, इथाइल अल्कोहल की जगह पे
हायर अल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वहां पे एक रिएक्शन आता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मींस ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ये भी मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से। हाइड्रोबोरेशन मैंने बताया था बहुत अच्छे से। तो ये सारे रिएक्शन मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट आप रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बार जाओगे एडिशन रिएक्शन के लिए तो सारा कुछ मिलेगा आपको विथ मैकेनिज्म। इसीलिए मैंने वहां पे बहुत डिटेल में बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट जा सको। फिर भी मैं यहाँ पे चीजें आपको बता रहा हूँ, इसको मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, देखते रहिए आप, रिवाइज करते रहिए फटाफट। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपना कैसे है ये, दैट इज व्हाट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, चलिए देखिए। तो यहाँ पे कैसा होगा, एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। और उसके बाद उसको हटाएंगे, तो पहले देखो यहाँ पे कैसे होगा, मैं रिएक्शन डायरेक्टली बताता हूँ। RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ले लिया मैंने HgO COCH3 ट्वाइस H2O, ठीक है। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, H प्लस O COCH3, मतलब एक ये ग्रुप माइनस निकल चुका है। हाँ? अगर ये भी यहाँ पे अटैच होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पे Hg प्लस ये बनेगा, ठीक है। अब इसी का एडिशन होगा बेटा यहाँ पे, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मर्क्यूरेशन। पहला स्टेप हो रहा है मर्क्यूरेशन, वी गेट दिस CH3 HgOCOCH3, ये प्रोडक्ट मिल गया अपने पास, CH, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कराना चाह रहे हैं, डीमर्क्यूरेशन, स्ट्रॉन्ग बेस NaBH4। तो अब जो डीमर्क्यूरेशन होगा क्या बनेगा, RCH CH3OH, दिस इज अवर प्रोडक्ट, राइट है। So this is what we can say, that addition of hmm, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कैसा हो रहा है, एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट in presence of water is called ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग दिस बेस इज कॉल्ड व्हाट, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, समझ में आ गया।
दिस इज Markovnikov addition, huh? Okay. Markovnikov's addition because negative part will attach to that carbon which carries the less number of hydrogen. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है, ठीक है। जैसे अगर ये एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, आप देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पे, फाइंड आउट दिस। CH2। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ना, पहला क्या ले रहे हैं हम लोग, Hg, ट्वाइस। बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस मैंने किया और प्रोडक्ट बताओ क्या बनने वाला है। ऑल ऑफ यू ट्राई टू मेक इट, व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर। चलिए बताइए मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे। ओके, प्रोपेन टू ऑल, परफेक्ट। बट प्रोपेन टू ऑल रॉन्ग है, प्रोपेन टू ऑल इज रॉन्ग। कम ऑन, एनीवन मोर, जस्ट गिव मी द आंसर। बहुत माइन्यूट डिफरेंस मैंने किया, बहुत माइन्यूट डिफरेंस, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए शायद। चलिए मैं ट्राई करूं। देखो बेटा यहाँ पे ये लिया मैंने और यहाँ पे क्या लिया, H2O लिया है। और अगर H2O लेंगे ना तो H2O कैसे डिसोसिएट होगा, प्लस में और माइनस में। तो यहाँ पे अटैच क्या हो गया, OH अटैच हो गया। लेकिन इस केस में मैंने क्या लिया यहाँ पे, इस केस में आई हैव टेकन दिस व्हाट, ROH। और ROH में ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा अल्कोहल नहीं बनेगा, ईथर बनेगा, ईथर। आपको समझ में आ रही मेरी चीजें। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, OR, दैट बिकम व्हाट, ईथर, नॉट अल्कोहल। तो अगर वाटर लिया तो अल्कोहल बनेगा, अगर वाटर की जगह मैंने अल्कोहल ले लिया देन वी गेट दिस व्हाट, ईथर। समझ में आया। यस सर। तो अगर वाटर की जगह माइन्यूट डिफरेंस हो गया, यहाँ पे टिक मार्क करके रखो, यहाँ पे अगर माइन्यूट डिफरेंस हो गया, यहाँ पे वाटर की जगह पे अल्कोहल ले लिया देन वी गेट दिस व्हाट, ईथर। चलो, हाइड्रोबोरेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये आपको अल्कोहल में आएगा, अल्कोहल में ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अल्कीन बता रहा हूँ आपको, ये सेम आपको अल्कोहल में आने वाला, ईथर में आने वाला, अल्कोहल के प्रिपरेशन में ये आने वाला ही है, राइट। ये रिएक्शन आपको अल्कोहल के प्रिपरेशन में आने वाला है, अल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर चलेगा उसमें ये प्रिपरेशन आएगा ही आएगा, एडिशन ऑफ द वाटर से कैसे हम लोग अल्कोहल बना रहे हैं हाइड्रेशन से। तो ये सारे रिएक्शंस आने वाले, अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आएगा आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो मैक्सिमम रिएक्शंस ये सब जो होंगे वो रिपीट होने वाले हैं, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया मैकेनिज्म में। तो थ्राइस या 4 टाइम्स ये सब रिएक्शन आपको मैकेनिज्म, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये रिपीट होने वाले हैं।
So next I'm going to explain this hydroboration. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूरा नाम लिखते हैं, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, चलिए देखते हैं क्या है, कैसे होने वाला ये सारी चीजें। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन मैंने बताया था आपको, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ क्या होने वाला है। सबसे पहले क्या लेते हैं ना हम लोग, 6 मोल ऑफ अल्कीन लेते हैं। देखो अभी तक जितना भी मैंने मैकेनिज्म रिएक्शन बताया उसमें सब में एडिशन कहाँ पे हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल, एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। कैसे, जरा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है किससे, B2H6 डाइबोरॉन। तो डाइबोरॉन के एडिशन में कैसा हो रहा है यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 मोल ऑफ द आर। मैं पूरा आपको ओपन करके अच्छे से बताता हूँ, आपको टेंशन मत लेना। मैकेनिज्म में भी मैंने बताया है, CH2 CH2 thrice B। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड के प्रेजेंटेशन में। तो इफ आई एम टेकिंग दिस R, CH2 CH2 thrice B in presence of peroxide, in presence of peroxide H2O2 और बेस के प्रेजेंटेशन में अल्कलाइन मीडियम। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो अपने को अल्कोहल मिलेगा, बट कैसा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी। अभी तक जितने भी अल्कोहल मिल रहे थे हमें सेकेंडरी टर्शियरी मिल रहे थे बिकॉज ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी। राइट है। चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कैसे होता है, मैंने बताया तो है, फिर भी आप एक बार देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे, ये आप नोट डाउन कर लो पहला बेटा, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताता हूँ। हो गया लिख के, चलिए देखिए। देखिए यहाँ पे कैसे अभी हो रहा है रिएक्शन। तो जो B2H6 है ना डाइब्रोन, उसको हम लोग BH3 में लिख सकते हैं दो फॉर्म में। देखो ये होता है ना हाइड्रोजन जो अटैच होते हैं इससे ना, एक यहाँ पे होता है H, एक यहाँ पे होता है H, H और H, और यहाँ पे एक बनाना बॉन्ड फॉर्म करता है लाइक दिस, H और H, ये बनाना बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब ब्रेक करते हैं तो BH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये BH3 हमें देखना है मैंने यहाँ पे, तो देखो BH3,
ये होगा BH3। अब इस BH3 से ना हमें अटैच करना है क्या क्या, एक BH3 से 3 अटैच होने वाले अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे R ले लिया, R, यही है। अब होगा क्या कि जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो ये H यहाँ पे आएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे, एकदम सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये इससे अटैच हो गया बेटा यहाँ पे, CH2 CH2 R, CH2 CH2 R, CH2 CH2 R, ठीक है। अब पैरोक्साइड से हम लोग रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे पैरोक्साइड ले लेते हैं, तो HOH लेते हैं, यही तो है पैरोक्साइड, यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ले लिया, तो ये प्रोडक्ट यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया और ये यहाँ से निकल गया। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना अपने पास, 3 मोल ऑफ R CH2 CH2OH प्लस ये जो B था उससे 3 OH अटैच होकर के ट्राइस बना दिया, दैट बिकम व्हाट, बोरॉन ट्राइहाइड्रोक्साइड। तो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो कि यही प्रोडक्ट मैंने बनाया, दैट इज व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। तो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, और हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्कोहल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये रिएक्शन मैंने बताया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये, राइट, यहाँ पे 2BH3 है, इसके लिए मैंने 6 लिया, यहाँ पे एक मूल लगा कर इसको कर दिया, रिएक्शन ये बन गया। ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। ये रिएक्शन लिखो। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीजें जो स्टीरियो सेलेक्टिव या रेडियो सिलेक्टिव होते हैं ना, वो मैं बताने वाला हूँ। अब नोटेड।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नोट डाउन करते हैं। देखिए, नोट it is an example of sin addition, राइट। मैंने आपको बताया था sin एडिशन कैसे होगा। जैसे देखो यहाँ पे, अगर ये मैंने प्रोडक्ट लिया, जैसे समझो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे CH3। इसको इस तरह से लिखते हैं, तब समझ में आएगा आपको। देखिए, डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन दिखाते हैं इसको। पहला BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरा पेरोक्साइड H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अपने पास? सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब ये है कि ये जब डबल बॉन्ड टूटा ना, तो जिस साइड में H अटैच होगा उसी साइड में क्या अटैच होगा? OH। दैट इज द मेन स्टोरी, ठीक है। जिस साइड में H अटैच हो गया उसी साइड में क्या हो गया? OH। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिन एडिशन, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं द नेट रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज एडिशन ऑफ H and OH according to anti-Markovnikov rule। ठीक है, तो ये मेन अपना रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो यहाँ पे कुछ और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने एडिशन बताया अल्कीन से, कि यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनता है, कौन सा? ट्राई अल्काइल बोरॉन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया। लास्ट यस, पे दिख रहे हैं क्या हुआ? सर, लास्ट पे एक मिनट दिखाएंगे। हाँ, एक मिनट देखो, ये वाला ना लिख लो। ओके, सी है। रिएक्शन ऑफ ट्राई अल्काइल, हाँ,
बोरॉन। ट्राई अल्काइल बोरॉन के कितने रिएक्शंस हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैंने ये ले लिया आर CH2 CH2 थ्राइस बी, यही तो बना था पहले। ये कैसे बना था अपना, हमने लिया था RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिया था मैंने BH3 से इन प्रेजेंस ऑफ THF, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसका रिएक्शन हम लोगों को जरूरी नहीं कि हम मुझे अल्कोहल ही दे हमेशा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे इसके रिएक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। क्या क्या प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएजेंट हमने यहाँ पे यूज किया, अकॉर्डिंगली वी कैन गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। ओके, यहाँ पे पहला मैं लेता हूँ एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन अगर मैंने एसिटिक एसिड से करा दिया, देखो परऑक्साइड से तो कराया था, मैं क्या मिला था, अल्कोहल मिला था, ठीक है। बट इफ इट इज रिएक्टिव विद द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज व्हाट, अल्केन। फिर इसका रिएक्शन मैंने करा दिया, फर्स्ट BD3 THF, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लिया मैंने। ड्यूटेरियम लेने के बाद प्रोडक्ट जो बना वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे आर CH2, यहाँ पे भी डी आ गया और यहाँ पे भी डी आ गया, ठीक है। दोनों जगह पे डी जो मिला वो कहाँ से मिला, ये जो डी मिलता है यहाँ पे ना, वो कहाँ से मिलता है, फ्रॉम COD। और ये जो मिलता है कहाँ से मिलता है अपने को, फ्रॉम BD3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं इसका रिएक्शन। अगर इसका रिएक्शन मैंने AgNO3 से करा दिया, और NaOH से करा दिया, तो क्या मिलेगा अपने को, R CH2 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 CH2R, डाइमेराइजेशन हो गया। मतलब यहाँ पे कार्बन का नंबर n था, तो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसका नंबर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, राइट है। अगर यहीं पे मैंने इसका रिएक्शन करा दिया, फर्स्ट NH4Cl and second H2O heating, then what will get here, NH2, ठीक है। क्या हो गया ये, ओके। यहाँ पे देखिए, थर्ड है इसका, अगर इसका रिएक्शन फाइनली मैंने करा दिया,
किससे करा था अभी? NH2Cl, sorry, that should be what? NH2Cl और HOH ना। अब इसका रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ किससे? Br2 से। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या होगा? Br मिल गया, ठीक है, गॉट इट। तो ये सारे रिएक्शंस हो गए और इस रिएक्शन को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हो गए किसके? ट्राई अल्काइल बोरॉन के, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। देन आई विल गो फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। Cl2 और Br2 जो ऐड होगा कैसे होगा, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, कहाँ पे सीन और कहाँ पे एंटी एडिशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो जो वहाँ पे एडिशन था वो कैसा हो रहा था? एंटी एडिशन हो रहा था। मैं बताता हूँ अभी, हाँ, एडिशन ऑफ Cl2 एंड Br2, चलिए देखते हैं। यू नोट डाउन दिस पार्ट। हैव डन। चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ हेलोजन। Cl2 एंड Br2, ठीक है। ओके, कैसे होगा एडिशन? तो यहाँ पे आपने पढ़ा है पहले से, मैंने बताया आपको, अल्कीन gives addition reaction with chlorine and bromine. Now chlorine and iodine do not give addition reaction with alkenes. ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है?
कि फ्लोरीन अंडरगोज explosive reaction with alkene. With alkenes, ठीक है. Now alkenes adds to iodine and gives 1,2-diiodo alkane. Which is highly unstable and convert again into alkene, ठीक है. RCH CHR, ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, बहुत बल्की ग्रुप है, अनस्टेबल है, बड़े मॉलिक्यूल एटम्स है, तो आपस में रिपेल करेंगे और रिपेल करके क्या देंगे फिर से अल्कीन. तो ये फॉर्मेशन कम होता है और ये फॉर्मेशन ज्यादा होता है. मींस व्हाट, RCH डबल बॉन्ड CHR. तो कभी भी दो आयोडीन एडजेसेंट कार्बन पे अगर आ गए तो दैट इज व्हाट हाईली अनस्टेबल एंड कन्वर्ट इनटू द अल्कीन. नाउ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज व्हाट, ब्रोमीन gives anti addition. मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था कि स्टीरियो जब केमिस्ट्री सीखेंगे तो वहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे एंटी एडिशन पे होता है रिएक्शन. फिर भी यहाँ पे बता दूंगा. इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, like that CCl4 or CH2, in this reaction in this reaction anti addition reaction takes place. अभी मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा तो सब कुछ याद आ जाएगा जो मैंने बताया. एज फॉलोज, कैसे मैंने बताया था आपको, देखो अभी रिएक्शन देखोगे आपको तुरंत समझ में आएगा फटाक से कि मैं क्या बता रहा था. सुनो, इफ आई एम टेकिंग दिस अल्कीन लाइक दैट R C डबल बॉन्ड C R and H, ठीक है. अब हमें पता है कि यहाँ पे Br2 का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग. Here I'm taking this Br2, Br and Br, यही है. इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, ये अप्रोच करेगा. जैसे कि ये डबल बॉन्ड इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या हो रहा है. ये डबल बॉन्ड इसको अप्रोच कर रहा है यहाँ पे और ये लोन पेयर के साथ अप्रोच कर रहा है इसको.
तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर आर नॉट ए सिंगल बॉन्ड आर एच। अब सपोज कि बीआर पहले यहाँ पे अटैच हो गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मेरी बात को जरा समझो, मैं क्या बता रहा था यहाँ पे। सपोज यहाँ पे बीआर अटैच हो गया बेटा, यहाँ पे बीआर अटैच होगा और यहाँ पे प्लस आ गया, यही तो होगा। बट यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बीआर के पास, और जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, तो क्या इसको अप्रोच करेगा? यस करेगा ये। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पे? व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर? फाइनली विल गेट दिस प्रोडक्ट आर आर सी आर एच, और इसी को बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। मैंने आपको बता दिया था कि कार्बन पे डायरेक्ट नहीं रहेगा, ये जो अटैच हो गया इसकी वजह से क्रिएट होगा यहाँ पे, तो दैट इज द बीआर। और यहाँ पे प्लस हो गया तो पार्शियल प्लस यहाँ पे भी आएगा और प्लस यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे एडिशन होगा किसका? बीआर माइनस का। और जैसे बीआर माइनस का एडिशन होगा तब सवाल उठता है कि कहाँ पे हो रहे वाला है। तो यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे, प्रोडक्ट तो एक ही बनने वाला है, या तो यहाँ पे हो या तो यहाँ पे। तो नॉर्मली होता है ऐसा है कि जहां पे ज्यादा अल्काइलेटेड अल्काइल ग्रुप होते हैं वहां पे अटैक करता है और ये रिंग ओपनिंग ऐसा हो जाती है। बट कोई बात नहीं, कहीं पे भी आप अटैच कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया बीआर माइनस, ये जो न्यूक्लियोफाइल बना यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा ना, ऐसा बन गया ये न्यूक्लियोफाइल माइनस। तो ये जो माइनस है ना न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और जैसे अटैक करेगा तो रिंग की ओपनिंग हो गई यहाँ पे। तो अब देखो प्रोडक्ट क्या बना फाइनली, फाइनली वी गेट दिस प्रोडक्ट सी। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? आर आर सी, यस, यहाँ पे था आर और यहाँ पे था एच। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर बी आर आ गया नीचे, तो यहाँ पे बी आर कहाँ पे आएगा? ऊपर। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंटी एडिशन। समझ में आया? समझ में आ गया ये? Yes, sir. नो, इज इट योर फिजिक्स लेक्चर और बायो लेक्चर? टुडे इज योर बायो लेक्चर ना? मे बी चेंज सम। अनुराग सर, आई सेंड दैट आईडी पासवर्ड, चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट बन गया, आपको समझ में आ गया ये? ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स आज के लिए यहाँ पे, bromine is used for the test of unsaturation because unsaturated compounds discharge the color of bromine. Now next point, कार। ये मैंने लास्ट टाइम भी लिखा के दिया था आपको मैकेनिज्म में, फिर भी ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कार is the word from which stereochemistry of anti-addition
reactions of alkenes can be known as कैसे? देखिए यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, कैन बी नोन एज, C means what? Cis alkene A means what? Anti-addition. R means what? Racemic mixture. Racemic mixture, ठीक है, या इसी को बोलते हैं थ्रो फॉर्म या थ्रियो फॉर्म, ठीक है. नाउ in anti-addition reaction, cis alkene give racemic mixture. And trans will give mesoform. Mesoform, ठीक है, और इरिथ्रो. जैसे एक रिएक्शन लास्ट है, ये समझ लेते हैं हम लोग. मैंने यहाँ पे लिखा बेटा CH3 H डबल बॉन्ड CH3H, ये सिस है. इसका रिएक्शन करा दिया मैंने किससे? Br2 से CCl4 के प्रेजेंटेशन में. एंटी एडिशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा. कैसा मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर? देखो यहाँ पे Br Br, ठीक है. अब यहाँ पे अगर CH3 हो गया, यहाँ पे H, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को? CH3 और H, और प्लस एक उल्टा मिल जाएगा अपने को, क्या? Br Br, यहाँ पे ले लिया मैंने H और CH3, और यहाँ पे ले लिया CH3 और H. दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर. बट अगर यहीं पे मैंने एंटी मतलब ट्रांस ले लिया, तो व्हाट विल गेट इन दैट ट्रांस? ये देखिए यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ ले लिया मैंने, चलो यहाँ पे ले लिया मैंने Me और यहाँ पे ले लिया मैंने Me, यहाँ पे ले लिया H और H ले लिया, दैट इज व्हाट ट्रांस. ट्रांस में एडिशन करा दिया मैंने किसका? Br2 का, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. यहाँ पे भी एंटी एडिशन ही ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को? मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में क्या मिल रहा है अपने को? मेसोफॉर्म. मेसोफॉर्म इन द सेंस व्हाट विल गेट हियर? यहाँ पे प्रोडक्ट मिला अपने पास. नाउ CH3
यहाँ पे आ गया बी आर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी राइट वर्ड सी एस सी एस सी, यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड है, जस्ट मिनट, सॉरी, ये भी गेट वर्ड, देखो बी आर, यहाँ पे मिल गया बी आर, यहाँ पे क्या हो गया सी एस सी एच, और यहाँ पे क्या उड़ गया एच और सी एस सी, दिस इज द टू इक्वल पार्ट में है, डिवाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट मेसोफॉर्म, यही आपको प्रोडक्ट है। तो सिस रहा तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, ट्रांस रहा तो आपको मेसोफॉर्म मिलेगा, एंड दैट इज एक्सप्लेन बाय दिस व्हाट कार। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन से। क्लियर है? ओके, you may note down this part and those have completed can leave. Okay, sir. चलो मैं ये अपलोड कर देता हूँ, आप वहां पे भी देख सकते हो, बहुत लोगों का डिस्कनेक्ट हो गया था, तो नो इश्यू, मैं अपलोड कर देता हूँ, आप वहां पे देखेंगे यूट्यूब पे, फिर तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, प्रीवियस वाला भी और ये वाला भी, लास्ट का 2 या 3 रह गया अपना, तो वो मैं आज अपलोड कर देता हूँ। चलिए बाय, थैंक यू।